ناظرین السلام علیکم۔ خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ ارکان مقررہ کے لیے پہلی مرتبہ 2 روزہ اورینٹیشن پروگرام۔ وزیر اعلیٰ وزراء کے بشمول تمام ارکان سے شرکت کی خواہش، PRS کا بائیکاٹ۔ صدر جمہوریہ کی 5 روزہ دورے پر آئندہ ہفتے آمد۔ راشٹرپتی نیلائم کی تزئین، چیف سیکرٹری کا جائزہ اجلاس۔ پولیس کے ساتھ مبینہ دھکم پیل سے متاثرہ آشا ورکرز کی KTR نے عثمانیہ ہاسپٹل پہنچ کر کی عیادت۔ ذمہ دار پولیس عہدیداروں کو معطل کرنے کا مطالبہ۔ تیلگو فلم اداکار موہن بابو کے خاندان کا جھگڑا سڑک پر، بیٹے اور بہو کو گھر سے نکال دیا، بیٹے نے کیا انصاف کا مطالبہ۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ QMax دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th 6th 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن QMax کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایسے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایسے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر۔ اسکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے۔ اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، کرافٹڈ جسٹ فار یو، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ سرخیاں آپ نے دیکھی ہے، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تلنگانہ قانون ساز اسمبلی و کونسل کے ارکان کے لیے 2 روزہ اورینٹیشن پروگرام 11 اور 12 دسمبر MCRSRD انسٹیٹیوٹ جوبلی ہلز میں منعقد ہوگا۔ اس پروگرام میں PRS لیجسلیچر ریسرچ نئی دلی سے تعلق رکھنے والے سرکردہ ماہرین برائے مقررہ امور، ایوان کے قواعد و ضوابط، طریقہ کار، بجٹ و متعلقہ موضوعات پر لیکچر دیں گے۔ سوال جواب کا بھی سیشن ہوگا۔ اسپیکر اسمبلی نے علیحدہ مکتوب میں تمام ارکان اسمبلی، صدرنشین کونسل نے کونسل کے ارکان سے اس 2 روزہ پروگرام میں شرکت کی خواہش کی ہے۔ شیڈیول کے مطابق پروگرام کا چہارشنبہ 11 دسمبر کو 10:30 بجے دن آغاز ہوگا۔ افتتاحی اجلاس کے بعد ماہرین کے ساتھ موضوعاتی لیکچرز ہوں گے۔
अरकान को मौज़ूआत और स्पीकर्स के नाम रवाना किए गए हैं। इस प्रोग्राम में बशमूल वज़ीर आला रियासती वज़रा भी शिरकत करेंगे। इख्तिताम जुमेरात 12 दिसंबर को शाम 5 बजे होगा। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने कहा कि अरकान असम्बली ओरिएंटेशन प्रोग्राम का बाइकॉट करेंगे। इस सिलसिले में एक ऐलान जारी करते हुए उनका कहना था कि असम्बली के आगाज से पहले हमारे हुकूक की खिलाफ वर्जी करते हुए स्पीकर ने फैसला लिया है। पहले ही दिन ऐवान असम्बली आने से रोक दिया गया, पुलिस के जरिए गिरफ्तार करवाया गया। हुकूमत की नाकामियों और अवामी मसाइल को उठाने और एहतजाज करने पर हमें गिरफ्तार किया गया। बीआरएस पार्टी के मुनरिफ अरकान पर स्पीकर कोई फैसला न लेते हुए इस मामले को तूलते रहे हैं। स्पीकर के तरीक़ेकार के खिलाफ चारशंबे से शुरू होने वाले ओरिएंटेशन सेशन का बीआरएस बाइकॉट कर रही है। उन्होंने स्पीकर से पार्टी से बालातर होकर काम करने की अपील की। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू 17 से 21 दिसंबर राष्ट्रपति नीलायम बुलारम में क़याम करेंगी। हैदराबाद में क़याम और उनके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का दरकार सहूलतों की फराहमी पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों से कहा कि सदर जमहूरिया के क़याम और प्रोग्राम्स के इंतजामात में मुकम्मल तालमेल के साथ काम करें। महकमे जंगलात के अहदेदारों से कहा गया कि वो राष्ट्रपति नीलायम में सांप पकड़ने वालों को तैनात करें। सदर जमहूरिया की आमद से पहले सांपों को पकड़ लिया जाए। इसके अलावा जीएचएमसी के ताउन से राष्ट्रपति नीलायम में और उसके अतराफ बंदरों से निपटा जाए। आमद से पहले मक्खियों को भी भगाया जाए। ये काम एडवांस में शुरू किए जाएं। महकमे पुलिस से कहा गया कि मौसर तरीके पर सिक्योरिटी व ट्रैफिक के इंतजाम किए जाएं। राष्ट्रपति नीलायम के अलावा जहां जहां सदर जमहूरिया के प्रोग्राम्स होते हैं वहां सिक्योरिटी व ट्रैफिक के मामला से निपटने महकमे सेहत, महकमे फायर, इमारात व शवारे, जीएचएमसी, महकमे बड़दी नज़ोनस के अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी गई। डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी रवि गुप्ता, स्पेशल कमिश्नर इत्तलात व ताल्लुकात अम्मा हर्ष व दीगर आला अहदेदार जायजा इजलास में शरीक थे। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पीर के दिन कोठी के पास आशा वर्कर्स के खिलाफ पुलिस की मुबैना कार्रवाई को बदबख्ताना करार दिया है। उस्मानिया हॉस्पिटल में मुतासरा आशा वर्कर्स की इयादत के बाद मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा, रेवंत रेड्डी क्या इस तरह खवातीन का एहतराम करते हैं? मर्द पुलिस मुलाजमीन और अहदेदारों को खवातीन को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन पुलिस के मुलाजमीन खातून आशा वर्कर्स को ज़ोदोकोब करते देखे गए। केटीआर का कहना था कि एसीपी और कांस्टेबल्स ने खवातीन के साथ नाशाइस्ता सलूक किया। वाक़े को 24 घंटे हो चुके, लेकिन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की तरफ से इस मामले पर एक भी लफ्ज़ नहीं कहा गया। केटीआर ने वाक़े के जिम्मेदार पुलिस अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। जिन आशा वर्कर्स के खिलाफ केस दर्ज किया गया उससे दस्तबरदारी का भी मुतालबा किया। केटीआर ने कहा कि जख्मी आशा वर्कर्स को मौसर इलाज कराया जाना चाहिए। इससे पहले बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कोठी एमडीई दफ्तर के पास पुलिस के साथ मुबैना कंपेल से मुतासरा आशा वर्कर्स की हॉस्पिटल पहुंचकर इयादत की। केटीआर ने मुतासरा खवातीन को तयक़ुन दिया कि असम्बली में उनके मसाइल को उठाया जाएगा। उन्हें हौसले के साथ रहना चाहिए, मायूस होने की जरूरत नहीं। केटीआर ने कहा कि अगर यहाँ पर इलाज में कोई दुश्वारी है तो दूसरी जगह इलाज पर गौर किया जा सकता है। दूसरी तरफ केटीआर की उस्मानिया हॉस्पिटल में आमद के मौके पर आशा वर्कर्स की बड़ी तादाद भी वहां पर पहुंच गई थी। पुलिस को भी तलब कर लिया गया था। आशा वर्कर्स को हॉस्पिटल के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। केटीआर को भी अंदर जाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हॉस्पिटल के बाबू दाखिले पर भी धक्कम-पेल देखी गई। केटीआर के हमरा साबिक वज़रा सबिता इंद्रा रेड्डी, जगदीश्वर रेड्डी और महमूद अली भी मौजूद थे। आशा वर्कर जो तेलंगाना में जब कोरोना की दौर आई थी, अपने जान की परवाह भी नहीं करते हुए पूरी तरह से जनता की खिदमत, हमारे भाइयों की बहनों की खिदमत उन्होंने किया कोरोना के दौरान। आज उन पे जो जुल्म किया गया, उन पे जो कल अटैक हुआ पुलिस की तरफ से, हम पहली बात तो यह है कि
कल जो अटैक हुआ वो एसीपी को, सीआई को, क्योंकि हमारे बहनों पे कल उन्होंने जो हरकत की आपने सब देखा, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, इसको लेके इमीडिएटली उनको सर्विस से डिसमिस करना चाहिए। इस बात को इसी हद तक नहीं छोड़ेंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था इलेक्शन से पहले कि 18,000 तनख्वाह आपको देंगे, साथ ही साथ आपका जॉब भी परमानेंट करेंगे। हम हुकूमत से डिमांड करते हैं, कांग्रेस हुकूमत से डिमांड करते हैं, पहली बात तो उनसे माफी मांगिए, हमारे बहनों से माफी मांगो आप। दूसरी बात, वो पुलिस, एसीपी और सीआई और बाकी जो लोग अटैक करें हमारे बहनों पे, उनको सर्विस से निकाल दो। तीसरी बात, जो वादा आपने किया उसको निभाओ, अगर नहीं निभाओगे तो हम एक तरफ असेंबली में, दूसरी तरफ काउंसिल में, और जो अटैक हुआ कल, जो हादसा हुआ इन पे, इसको लेके हम एचआरसी भी जाएंगे, विमेन कमीशन भी जाएंगे, स्टेट में भी जाएंगे और दिल्ली में भी नेशनल कमीशन तक भी जाएंगे। इनको नहीं छोड़ेंगे और जो लड़ाई और जो जिद्दोजहद हमारी बहन कर रहे हैं उनको मैं सलाम करता हूं। मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप, बीआरएस आपके साथ हैं, केसीआर साहब आपके साथ हैं, आप बेफिक्र रहिए। अगर आपको यहाँ पे उस्मानिया में ट्रीटमेंट अगर आपको सही नहीं लगता तो प्राइवेट दवाखाना हम ले जाएंगे, पार्टी की तरफ से हम आपकी हिफाजत करेंगे। बस इतना कहना चाह रहा था, शुक्रिया आपका। दूसरी तरफ तेलंगाना के वजीर सीतक्का ने गुज़िश्ता रोज आशा वर्कर्स के एहतजाज के तनाजुर में कहा, आज के महंगाई के दौर में आशा वर्कर्स की तरफ से 18,000 रुपये मुस्तकिल तनख्वाह का मुतालबा मुनसिफाना है। मीडिया से बात करते हुए सीतक्का ने कहा, आशा वर्कर्स को महंगाई की वजह से मसाइल का सामना है और वो वज़ीर आला से अपील करती हैं कि आशा वर्कर्स के मुतालबे पर गौर किया जाए। बीआरएस पार्टी की एमएलसी कविता ने पार्टी हेडक्वार्टर में तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे को दूध से नहलाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कविता ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से तेलंगाना तल्ली के नए मुजस्समे की तनसीब पर सवाल उठाए। कविता ने कहा, मुजस्समे को लेकर राजदारी बरती गई, किसी से सलाह मशवरा तक नहीं किया गया। उनका कहना था कि 4 करोड़ अवाम के जज्बात का ख्याल नहीं किया गया। इस मसले पर अवाम के तमाम तबक़ात से सलाह मशवरा किया जाना चाहिए था। रेवंत रेड्डी हमेशा से तेलंगाना के मुखालिफत रहे और ये बात तेलंगाना की तारीख में दर्ज है, लेकिन अब वो किसी तरह खुद को तेलंगाना की तारीख से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली वाई श्रीनिवास ने कहा, केसीआर अंबेडकर के दस्तूर की इज्जत करते हैं तो असेंबली आकर सलाह मशवरा करें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि लीडर ऑफ अपोजिशन के ओहदे की केसीआर की नज़र में कुछ अहमियत नहीं है तो फौरी इस्तीफा दे दें। बीआरएस पार्टी किसी SC ST और अक़लियतों की नहीं तो केसीआर हरीश राव को अपोजिशन का ओहदा दें। उनका कहना था कि बीआरएस का कहना है कि इख्तियार में आने के बाद तेलंगाना तल्ली गांधी भवन मुंतकिल करेंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना अवाम बीआरएस को कोई मौका ही नहीं देंगे। KTR और कविता निचली सियासत के लिए किसी हद तक भी गिर सकते हैं। 10 साल की हुकूमत में बीआरएस वालों ने तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नस्ब नहीं किया। हमारी हुकूमत पर तनकीद करने का हक हर एक को हासिल है, लेकिन केसीआर खानदान को हरगिज़ नहीं है। बीआरएस पार्टी के लीडर कार्तिक रेड्डी ने मादरे तेलंगाना के मुजस्समे की मुबैना तौहीन का इल्जाम लगाते हुए बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। कार्तिक रेड्डी ने अपनी शिकायत में पुलिस से दरख्वास्त की कि मुजस्समे की तौहीन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हुकूमत के व्हिप बी एलिया ने कहा कि तेलंगाना तल्ली के मुजस्समे के बारे में केसीआर हरीश राव अगर बात करेंगे तो तेलंगाना के अवाम उनकी जबान काट देंगे। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, 2007 में आलेर असेंबली हल्के के अवाम बेगमपेट में तेलंगाना तल्ली का मुजस्समे का नमूना तैयार किया था। उसी नमूने के मुताबिक मुजस्समे को तैयार किया गया। लक्करानी कविता भी यहाँ पर तेलंगाना तल्ली के बारे में बात कर रही हैं। अमेरिका से वापसी के बाद तेलंगाना मुजस्समा उनकी तरह होगा, उसकी ख्वाहिश थी। उन्होंने कहा कि महलों की तल्ली नहीं, गरीब अवाम की तल्ली चाहिए। बीआरएस की आमराना हुकूमत को काफ़ी बर्दाश्त किया जा चुका है, इसलिए अवाम ने उसे घर में बिठा दिया। अगर इस तरह की चिल्लर सियासत करेंगे तो अवाम सबक सिखाएंगे। गवर्नमेंट व्हिप ए श्रीनिवास साबिक रुकन असेंबली सी रमेश के ताल्लुक से हाईकोर्ट का फैसला केसीआर के मुंह पर तमाचा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, सी रमेश हिंदुस्तानी शहरी नहीं है, यह मालूम होने के बावजूद केसीआर ने सी रमेश को टिकट दिया था।
जर्मन पासपोर्ट से घूमने वाले शख्स को केसीआर ने मौका दिया। सी रमेश के साथ साथ केसीआर को भी सजा मिलनी चाहिए। विमला वाड़ा के अवाम से केसीआर और बीआरएस पार्टी माफी मांगे। हर बात पर रद्दअमल ज़ाहिर करने वाले केटीआर इस मामले पर खामोश क्यों हैं? हिंदुस्तानी शहरियत की दरख्वास्त को मरकजी हुकूमत ने 3 बार मुस्तरद कर दिया। कानून के मुताबिक सी रमेश को सजा मिलनी चाहिए। अगर सी रमेश अदालत में अपील को जाएंगे तो वह कानूनी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। तेलंगाना बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा, कांग्रेस पार्टी केसीआर के नक्शे कदम पर चल रही है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि जकरानपल्ली में हवाई अड्डे को कायम करने के लिए मरकजी हुकूमत ने मंजूरी दी है। ओएलएस सर्वे करके मैंडेट देना काफ़ी है। ये कमर्शियल क्रैप की ज़्यादा पैदावार का इलाका है। मुकामी कांग्रेस पार्टी अरकान असम्बली तवज्जो न देने की वजह से सर्वे मुकम्मल नहीं हो रहा है। अरविंद ने आरयूबी और आरओबी के कामों के बिल्स को फौरी जारी करने का मुतालबा किया। तेलंगाना अवाम को लूटने वाली टोली केसीआर का खानदान है। इंतखाबात होंगे तो वहां कांग्रेस को सबक सिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी को भी लूटने के सिवा कुछ नहीं मालूम। केसीआर और रेवंत रेड्डी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकुतपुरे के मुख्तलिफ डिवीजन में लाखों रुपए के तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराद ने बताया कि कुरमाकोड़ा डिवीजन के तहत जवाहरपुरे से एसआरटी कॉलोनी वीडीसीसी का काम शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि 2 दिनों में काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। रुकन असम्बली ने कुरमाकोड़ा डिवीजन में कदीम पुलिस स्टेशन से नूर मस्जिद तक सड़क के काम का आगाज किया। 2 सड़कों की तामीर पर 40 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे। रुकन असम्बली ने कुरमाकोड़ा मछली मार्केट के पास सीवरेज के काम का भी आगाज किया। इस पर 6 लाख रुपए के मसारिफ आएंगे। इन तमाम कामों को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात के अलावा मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बे कादरी के हमरा महकमे आबरसानी के मैनेजिंग डायरेक्टर के अशोक रेड्डी के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। सदर मजलिस की नुमाइंदगी पर 66 तरक्याती कामों की मंजूरी हासिल की जाएगी। उन्होंने अशोक रेड्डी को सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का मकतूब भी हवाले किया, जिसमें मज़कूरा तरक्याती कामों की तफसीलात हैं। अशोक रेड्डी ने मोहम्मद मुबीन को तयक़ुन दिया कि वह सिलसिले में टेंडर्स तलब करेंगे। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बे कादरी ने सरकारी महकमेजात के अहदेदारों के हमरा हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के शास्त्रीपुरम डिवीजन का पैदल दौरा किया। उन्होंने बड़ा नाल, बर फैक्ट्री, माजी की दरगाह के अलावा दूसरे इलाकों का अहाता किया। महकमे आबारसानी के जनरल मैनेजर कृष्णा व प्रोजेक्ट ऑफिसर SHMC और महकमे बरकी के अहदेदारों को जरूरी हिदायत दी गई। मजलिस के नुमाइंदा रुकन बल्दिया हसन नगर डिवीजन हबीब जैन आरिफ के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। शेखपेट डिवीजन में रोड पर ज़ईफ शख्स टाटा एस गाड़ी की टक्कर से गले में गिर गए। मुकामी अवाम ने बताया कि बल्दिया की तरफ से खुदवाई के दौरान एहतियाती इक़दामात न किए जाने से इस तरह के हादसे पेश आ रहे हैं। मुकामी अवाम ने ज़ईफ शख्स को गले से बाहर निकाला। मुतासरा शख्स ने भी मुताल्लिक़ा हुकाम और अरबाब मजाज से इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू और उनके बेटे की लड़ाई सड़क पर आ गई है। तफसीलात के मुताबिक मोहन बाबू ने अपने छोटे बेटे मंचू मनोज और उनकी बीवी को घर से मुबैना तौर पर निकाल दिया। मनोज और मोहन बाबू के बड़े फर्जंद मंचू विष्णु के बाउंसर के दरमियान घर के पास धक्कम पेल देखी गई। पहाड़ी शरीफ के हुदूद में वाक़े मोहन बाबू के फार्म हाउस के पास ड्रामाई मनाजिर देखे गए। मीडिया के नुमाइंदे भी मुकाम वाक़े पर मौजूद थे। कुछ देर के लिए मोहन बाबू के घर के पास कशीदगी देखी गई। पुलिस को भी तलब कर लिया गया। मोहन बाबू के छोटे फर्जंद मंचू मनोज ने पुलिस पर जानिबदारी बरतने का इल्जाम आयद किया। मीडिया से बात करते हुए मंचू मनोज ने कहा कि ये लड़ाई जायदाद के लिए नहीं है, बल्कि इज्जत व वक़ार के लिए है। उन्हें जो इंसाफ नहीं मिला वो इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना था कि उनकी अहलिया और उनके बच्चे को भी खतरा है। पुलिस भी जानिबदारी के साथ काम कर रही है और इंसाफ मिलने तक वो अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। दूसरी तरफ मोहन बाबू ने भी अपने बेटे के खिलाफ पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। GHMC की जानिब से कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को बर्खास्त कर दिया गया। बलदिया की कार्रवाई में ट्रैफिक पुलिस के ताउन से गोकुल प्लाट चौराहे से
नेक्सस मॉल और टेम्पल बस स्टॉप से ब्रांड फैक्ट्री तक के फुटपाथ पर कारोबार करने वालों को निशाना बनाया गया। सैबराबाद पुलिस ने 1100 चोरी हुए मोबाइल फोन का पता लगाते हुए उसके हकीकी मालिकान के हवाले किया है। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए 3 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत के मोबाइल फोनों को उनके मालिकान के हवाले किया गया। सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट में इस सिलसिले में तकरीब मुनाकिद की गई थी। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले में मुश्तबा माओवादियों की तरफ से मुसाफिरीन को उतारकर कार को आग लगा दी गई। तफसीलात के मुताबिक माओवादी जो चिंतूर से भद्राचलम आ रहे थे, श्रीवेला के पास कार को रोक दिया। कार से मुसाफिरीन को नीचे उतार दिया गया। कार के पास लकड़ियां लगाकर उसे आग लगा दी गई। पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंची। इलाके में चौकसी बरती गई है। हकीमपेट टोली चौकी के रहने वाले 43 साल ऑटो ड्राइवर मोहम्मद रियाज 6 नवंबर से लापता बताए गए हैं। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि हिमायतनगर पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। नूरीनगर बंडलागुड़े की साकिन 38 साल कौसर नियाज 7 फरवरी से लापता बताई गई है। वो घर से अपनी वालदा के मकान जाने के लिए रवाना हुई थी और वापस नहीं लौटी। किसी को नजर आ जाए तो दरखास्त की गई है कि बंडलागुड़ा पुलिस को इसकी इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से डालते हैं। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट टोली चौकी हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी हैदराबाद। अरकान मुकर्रना के लिए पहली मरतबा 2 रोज़ा ओरिएंटेशन प्रोग्राम। वज़ीर आला वज़रा के बशमूल तमाम अरकान से शिरकत की ख्वाहिश। BRS का बाइकॉट। सदर जमहूरिया की 5 रोज़ा दौरे पर आइंदा हफ्ते आमद। राष्ट्रपति नीलायम की तज़य्युन, चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास।
पुलिस के साथ मुबैना धक्कमपेल से मुतासरा आशा वर्कर्स की KTR ने उस्मानिया हॉस्पिटल पहुंचकर की आदत, जिम्मेदार पुलिस ओहदेदारों को मुअत्तल करने का मुतालबा। तेलुगु फिल्म अदाकार मोहन बाबू और बेटे का झगड़ा सड़क पर, बेटे और बहू को घर से निकाल दिया, बेटे ने किया इंसाफ का मुतालबा। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।